پریز دی لارڈ. سو خداوند یسوع مسیح کے پرفضل اور مقدس نام میں آپ کی سلامتی ہو. اور ہم اس بات کے لیے خوش ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے اور آپ اور میں خداوند کی اس فتح کے سبب سے شادمان اور خوش ہیں. آج خداوند کے مقدس کلام میں سے 3 سوالوں پر غور کریں گے. اور میں نے اس بات کو جاننے کے لیے جن مسیحوں سے بات کی 90% ایسے مسیح تھے جن کا جواب درست نہیں تھا. تو وہ 3 سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ ہم آج خداوند کے حضور درست جواب کو بھی جان سکیں. پہلا سوال آپ نے جواب دینا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بروز جمعہ مصلوب ہوئے اور اتوار کے روز ہفتہ کے پہلے دن مردوں میں سے زندہ ہوئے. اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے زندہ ہوئے تو کلام میں لکھا ہے چند عورتیں خداوند یسوع مسیح کی قبر پر گئیں تو انہوں نے لوٹ کر شاگردوں کو پہلا پیغام کیا دیا. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے یسوع کے جی اٹھنے کی خوشخبری انہیں دی تو جواب غلط ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال, پترس یسوع مسیح کی قبر پر کتنی بار گیا؟ بروز اتوار یسوع کے جی اٹھنے کے بعد پترس یسوع کی قبر پر کتنی بار گیا؟ اگر آپ کا جواب 1 ہے تو جواب غلط ہے. تیسرا سوال, یسوع سب سے پہلے اپنے شاگردوں یا رسولوں میں سے کس پر ظاہر ہوئے؟ شاگرد کہنے تو زیادہ بہتر. یسوع اپنے شاگردوں میں سے سب سے پہلے کس پر ظاہر ہوئے؟ اگر اماوس کی راہ پر کلپاؤس پر اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو پھر یہ جواب بھی غلط ہے. تو درست جواب کیا ہے؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا. اور میں چاہوں گا کہ اب یہ آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ اگر آپ ان جواب کو بہتر طور پر جان پائیں. تو میرے ایک بڑی پیارے دوست ہیں بھائی تنویر, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کریں. تو میں نے ان کی بات کو سامنے رکھا اور میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا اگر آپ آج ان 3 سوالوں کے جواب جان جاتے ہیں تو پھر آپ پر یہ ذمہ داری ہے ایک اچھے مسیحی ہوتے ہوئے کہ آپ نہ صرف چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کریں, مطلب آپ یہ بتائیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, اور پھر آپ اسے دوسروں کو شیئر کر کے یہ ثابت کریں گے کہ ہم اس پیغام کو پھیلانا چاہتے ہیں. 3 سوال آئیے بائبل کی روشنی میں سمجھیں کہ ان کا درست جواب کیا ہے. بائبل مقدس میں تحریر کیا ہے؟ بائبل مقدس میں تحریر ہے کہ عورتوں نے سبت کے روز تو حکم کے مطابق آرام کیا. اب آگے جو ہے وہ اتوار کا دن جب صبح سویرے کلام کہتا ہے کہ عورتیں کیونکہ یسوع کی بدن پر لاش پر خوشبودار چیزیں نہیں لگا سکی تھی تو لکھا ہے جب سبت کا دن گزر گیا مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سالومی لکھا ہے نے خوشبودار چیزیں مولی تاکہ آ کر اس پر ملے. وہ ہفتہ کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھی ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ سے کون لڑکائے گا. جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے کیونکہ وہ بہت بڑا تھا. اب بائبل مقدس کہہ رہی ہے عورتیں صبح سویرے جو کچھ ہوا ہے اس سے بے خبر یسوع کی لاش پر خوشبودار چیزیں ملنے کے لیے گئیں. غم تھا, تکلیف تھی, دکھ تھی کہ استاد ان کے ساتھ, خداوند ان کے ساتھ نہیں رہے. اب یہ ان کی لاش پر خوشبودار چیزیں جلا رہی تھی. جب ملنے کے لیے جب جا رہی تھی تو کلام یہ کہتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں سوال یہ تھا کہ قبر کے منہ کے اوپر ایک پتھر لڑکایا گیا تھا, ہمارے لیے اسے کون ہٹائے گا کیونکہ وہ اتنا بڑا تھا شاید وہ خود ایسا نہیں کر سکتی. لیکن مقدس کلام میں لکھا ہے جب وہ وہاں پر پہنچی عجیب معاجرہ دیکھا. اور معاجرہ کیا تھا؟ مقدس یوحنا کی انجیل 20ویں باب میں تحریر ہے. لکھا ہے ہفتہ کے پہلے دن مریم مگدلینی اور چند عورتیں, جیسا کہ ہم نے پہلے جو ہے وہ پڑھا مرکز کی انجیل 16ویں باب میں, لکھا ہے وہ قبر پر گئیں اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا. پس وہ شمعون پترس اور اس کے دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا, غالباً وہ یوحنا رسول ہے, لکھا ہے کہ اس کے پاس دوڑی گئی اور ان سے کہا خداوند کو قبر سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے. پہلا سوال جو یہ تھا کہ عورتوں نے شاگردوں پر
पहली खबर थी वो क्या दी? अगर आप ये समझ रहे हो उन्होंने खुशखबरी दी तो जवाब गलत है, क्योंकि मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में लिखा है औरतें कब्र पर गई जरूर, लेकिन उन्होंने कब्र पर जाकर पत्थर को लुढ़का हुआ देखा। जल्दी से बता रहा हूं, लिखा है जब हटा हुआ देखा तो उन्होंने देखा कि यीशु की लाश वहां मौजूद नहीं है। तो लिखा है वो दौड़कर हैरानगी और परेशानी के साथ शागिर्दों के पास आई और पतरस और फिर यूहन्ना को यह खबर दी। उन्होंने कहा कि खुदावंद की लाश को क्यों ले गए और हमें मालूम नहीं कहां रखा है। ना खुदावंद रहे ना खुदावंद की लाश हमें मिली ताकि अपनी मोहब्बत का इजहार उसके बदन पर जो है वो कर सके। सो पहला जवाब समझ लीजिए, औरतों ने पहला पैगाम खुशी का नहीं बल्कि फिक्रमंदी का दिया कि खुदावंद की लाश को, बॉडी को उठाकर ले गया है। मुकद्दस कलाम में लिखा है जब शागिर्दों ने यह सुना तो लिखा है यूहन्ना की इंजील 20वें बाब में, बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ दौड़े। कितने दौड़े? 2 शागिर्द कब्र की तरफ दौड़े और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे। दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़ गया क्योंकि वो जवान था और पतरस गालबन कदरे उम्र रसीदा था। तो कलाम में लिखा है दोनों जब पहुंचे कब्र पर तो लिखा है कि उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे। यूहन्ना ने अंदर नहीं गया, पतरस कब्र के अंदर गया, यीशु की कफन को, रुमाल को साइड पर पड़े हुए देखा और लिखा है हैरान और परेशान और नविश्तों को अभी क्योंकि समझ नहीं पा रहे थे कि खुदावंद की लाश को कौन यहां से ले गया जो औरतों ने पैगाम दिया, और दुख और कर और तकलीफ की हालत में वहां से चले कि ना खुदावंद रहा ना मुनज्जी रहा, और अब अकीदत और एहतराम के साथ जिसे हमने दफनाया कफनाया जो है अब वो भी हमारे साथ नहीं है। क्योंकि ये शर्त जो है वो मुकद्दस कलाम कहता है यीशु को दफनाने और कफनाने का ये यूसुफ अरमतिया और फिर मुकद्दस कलाम कहता है निकोदेमुस को मिला जो खुफिया तौर पर यीशु के शागिर्दों में से थे। अब मुकद्दस कलाम ये कहता है कि पतरस और यूहन्ना कब्र पर आए, देखा कुछ नहीं, कि हमें कुछ नहीं मिला और यीशु की लाश वाकई शायद यहां से को ले गया है। तो लिखा है वो वापस लौट गए, शागिर्द वापस लौट गए, लेकिन औरतें जो उनके साथ पीछे वहां पर वापस कब्र पर दूसरी बार वापस आई। तो लिखा है कि शागिर्द चले गए, औरतें वहां पर कब्र पर मौजूद हैं, उनकी तलाश खत्म नहीं हुई। वो फिक्रमंद है कि उनके खुदावंद की लाश को कौन यहां से ले गया। अब जब इसी फिक्रमंदी में कब्र के पास आंसू बहा रही थी, उनके अश्क बहते थे, तो मुकद्दस कलाम में लिखा है बस शागिर्द तो लौटे लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास रोती रही। अब औरतें रो रही हैं तो कलाम में लिखा है इनकी आंखों से जब आंसू जारी थे तो मुकद्दस कलाम में लिखा है एक फरिश्ता मौजूद हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और फिर औरतों, रोती हुई औरतों को खुशखबरी का पैगाम दिया कि तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बहते हैं, किसे ढूंढ रही हो? क्योंकि वो तो यीशु की लाश ढूंढ रही थी। लेकिन फरिश्ता ने औरतों का डरो नहीं, मैं जानता हूं तुम यीशु को ढूंढती हो। अब याद है ढूंढना उसे ढूंढा उसे जाता है जो खो गया। तो उन्होंने दुरुस्त कहा क्योंकि वो यीशु की लाश को ढूंढ रही थी। लेकिन आल में बाला से पैगाम दिया गया कि उसकी कब्र खाली है, वो मुर्दों में से जिंदा हो गया है। वो ना नीचे का था ना वो नीचे रहा, वो बुलंदियों से आया और बुलंद हो गया है। आओ वो जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड। सो मुकद्दस कलाम में जो खुशखबरी का पैगाम है, फिर औरतों को, रोती हुई औरतों को एक फरिश्ता के जरिए से मिला, पैगाम मिल गया। लेकिन क्या औरतें उस पैगाम को फौरन समझ गई? याद रहे, समझी तो तूमा जानकर भी कहता जब तक हाथ जे मैं उसके हाथ में उंगली ना डाल लूं, नहीं यकीन किया। तो औरतें भी समझ नहीं पा रही थी कि हमें यीशु की लाश चाहिए और ये कह रहा है कि वो यहां जी उठा है। ये तो बहुत बड़ी बात और उनकी समझ से बालत है। लेकिन उनकी आंखों से इस पैगाम को सुनने के बावजूद आंसू बह रहे थे। फिर क्या हुआ? वो फरिश्ता उन्हें अंदर लेकर गया, आओ अंदर आओ। और वहां पर 2 मजीद फरिश्तगान, जब उनकी आंखों से आंसू जारी थे और वो समझ नहीं पा रही थी, तो लिखा 2 फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सराहने और दूसरे को पैताने बैठे देखा।
जहां यीशु की लाश थी, उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत तो क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए और मुझे मालूम नहीं कि उसे कहां रखा है। अब यहां पर मजीद 2 फरिश्तों ने फिर से आदमी बाला से पैगाम दिया कि अब क्यों रो रहे हो? अब तुम्हारी आंखों से क्यों आंसू बह रहे हैं? यीशु तो जिंदा हो गया है। पहले एक फरिश्ता ने पैगाम दिया, अंदर फरिश्ता लेकर गया, वहां पर मजीद 2 फरिश्तों ने फिर से उन्हें शादमानी और खुशी का पैगाम दिया कि यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गया। अभी भी उसकी आंखों से आंसू जारी थे औरतों की। तो लिखा है फिर जब वो नहीं समझ पाए तो लिखा है फिर खुदावंद यीशु पीछे मुड़े, लिखा है यीशु आ उन पर जाहिर हो गया। यीशु ने उससे कहा, मरी औरत तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियां अगर तूने उसको यहां से उठाया है तो मुझे बता दे कि उसे कहां रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे कहा इब्रानी में, यूनानी जुबान का रबूनी, यानी ऐ उस्ताद। समझ नहीं पाए, उसे तो ये लगा था कि सब फना हो गया है। हम तो ये सोच रहे थे सब खत्म हो गया। उस्ताद को दोबारा जिंदा देखकर तो कलाम ने कहा वो उसे इस तरह पकड़ना चाहती थी ताकि सारे सवालों का जवाब भी मिले। खुदावंद तू कहां था? तेरे बगैर क्या गुजरी है? हम तुझसे मिलना चाहते थे, हम तुझसे बैठना, तेरे साथ बात कर। अब उसे खोना नहीं चाहती और उसे पकड़ा। तो कलाम में लिखा है खुदावंद ने मरियम से कहा, अब जरूरी ये है कि तू जाए और मेरे भाइयों को जो रोते हैं जाकर उन्हें बताए कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूं और मैं गलील को जाता हूं और वहां मैं तुमसे मिलूंगा। औरतों को पैगाम मिल गया कि यीशु की कब्र खाली है। कितनों ने दिया? पहले एक फरिश्ते ने, फिर 2 फरिश्तों ने, प्रेज द लॉर्ड, फिर यीशु खुद आकर, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी। और अब जब ये पैगाम मिल गया, औरतों का रवैया फिर क्या था? देखा, औरतें खौफ और खुशी के साथ फिर से दौड़ी। एक बार पहले दौड़ी थी, जब पहले दौड़ी तो कहा यीशु की लाश को कोई ले गया। अब दौड़ रही हैं, तो अब दौड़ने का मकसद यह है यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गया है। लेकिन कलाम में लिखा है कि उन पर लर्जिश और हैबत गालिब आ गई। उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि डरती थी। ये डर क्या है जो मरकस के इंजील 16वें बाब में लिखा है? ये डर वो है कि पहले हम दौड़ कर गए थे कि यीशु की लाश को ले गया, अब हम दौड़ कर आए हैं। तो अब अगर हम ये कहें कि अब यीशु जिंदा हो गए, तो ना पहले की बात समझ आ रही थी ना अब की बात समझ आएगी। परेशान तो थी, लेकिन मुकद्दस कलाम में लिखा मरियम मगदलीनी को क्यों हाईलाइट किया? क्योंकि उसने ये हौसला किया कि वो शागिर्दों को बताए। और जब शागिर्दों को बताया तो सुनिएगा प्लीज, लिखा है और वो कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब शागिर्दों, सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी। लेकिन जिन्होंने रसूलों से ये बातें कही वो मरियम मगदलीनी, योआना और याकूब की मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थी। मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई, उन्होंने उनका यकीन ना किया। औरतों को भी यकीन नहीं आ रहा था। एक फरिश्ते के साथ नहीं यकीन आया, 2 फरिश्तों के साथ नहीं आया, यीशु आ गया। फिर बात कुछ समझ में आई और फिर भी खौफ था। और लेकिन जब रसूलों को कहा गया उन्हें समझ नहीं आई, उन्होंने यकीन ना किया। लेकिन फिर क्या हुआ? दूसरे सवाल का जवाब, पतरस कब्र पर कितनी बार गया? एक बार नहीं। आगे लिखा है लूका के इंजील 24 बाब 12। इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुक कर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है, और इस माजरे से ताज्जुब करता हुआ अपने घर लौट गया। अब यहां पर गौर कीजिए, पहले जब दौड़े थे तो पहले यूहन्ना उसके साथ दौड़ा। लेकिन अब की बार जब यह पैगाम मिला कि यीशु जी उठा है, अब वो अकेला दौड़ा। पतरस खुदावंद से जैसे मिलने को बेकरार है, वो तड़प है। मालिक का इनकार किया, गलती हुई, अभी समझ नहीं आई, लेकिन फिर से उससे मिलना चाहता है, उससे लिपटना चाहता है, उससे बात करना चाहता। दौड़ कर गया, कहीं खुदावंद से फिर से मुलाकात हो जाए, क्योंकि गलत हुआ। उसे वो याद आ रही थी वो बातें, और मुकद्दस कलाम में लिखा है कि वो चाहता था कि खुदावंद से जो है वो मिल सके। अब ये दूसरा जवाब होगा, पतरस कब्र पर कितनी बार गया? तो जवाब 1 नहीं, जवाब 2 है।
ठीक है, अब मुकद्दस कलाम में आगे क्या लिखा है, इसी दरमियान पतरस इस जुस्तजू में था, तो कलाम में लिखा है खुदावंद यीशु इस बार अकेले पतरस पर जाहिर हो गए, पतरस से मिले और पतरस से कहा, देख मैं अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। और पतरस से गुफ्तगू की और उसे कहा, जा भाइयों को जाकर तसल्ली दे कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। हो सकता है आप सोचें ये कहां लिखा है, आइए ये भी जवाब इसका मुकद्दस कलाम में। वैसे पहला करंथियों उसके 15वें बाब में लिखा है कि यीशु कैफा पर पतरस पर पहले जाहिर हुए, लेकिन अगर वहां ना भी जाना चाहे तो आइए एक और मैं रेफरेंस देना चाहूंगा। अमावस की राह पर 2 शागिर्द जा रहे थे, ठीक है। अब मुकद्दस कलाम में लिखा है जब वो बातें कर रहे थे कि हम ये सोच रहे थे कि यीशु इसराइल को निजात देगा, और उनके जहन में वो सारे वाकियात थे, कलाम ने यीशु उनके साथ हो लिया और फिर उन्हें भेदों की सारी बातों की समझ दी। और जब उनके साथ खाना खाने बैठा तो लिखा गो कि वो पहले उनकी आंखें बंद पहचान ना सके, फिर यीशु ने आखिरकार जब अपना अपन पर जाहिर किया तो लिखा उन्होंने जब पहचान लिया तो यीशु लिखा उनके दरमियान से गायब हो गया। लेकिन अमावस की राह पर ये 2 शागिर्द, जिनमें अमावस की राह पर एक जो किलपाउस थे, लिखा ये फिर से वापस दौड़े और यरूशलेम में आकर उन्होंने शागिर्दों को एक साथ पाया। और यहां पर क्या हुआ वो गौर से सुनिए। बस उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उन साथियों को इकट्ठा पाया, और वो कह ही रहे थे कि खुदावन बेशक जी उठा और शमौन को दिखाई दिया है। क्योंकि शमौन पतरस ने यीशु सबसे पहले किस शागिर्द पर जाहिर हुए, तो जवाब है तीसरा जवाब, पतरस पर जाहिर हुए। शमौन पतरस पर जाहिर हुए क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि खुदावन बेशक जी उठा, और शमौन पतरस को दिखाई दिया है, औरतों को दिखाई दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो मुर्दों में से जिंदा हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूं आप इस फ्लो को, इस सारे वाक्य को जो है वो बेहतर तौर पर समझ पा रहे होंगे कि पतरस पर खुदावंद यीशु सबसे पहले जो है वो रसूलों में से या शागिर्दों में से सबसे पहले उस पर जो है वो जाहिर हुए। और फिर उसके मुकद्दस कलाम में लिखा है जब ये बातें हो रही थी, अमावस की राह वाले 2 शागिर्द भी आ गए, शमौन पतरस और दूसरे शागिर्द भी थे। तो लिखा है फिर यीशु आप उनके दरमियान आ गया और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। मैं इस पैगाम के साथ जो यीशु ने दिया वही बाइबल मुकद्दस का पैगाम है कि यीशु मसीह पर सियासत इसलिए हुई, वो इसलिए मारा गया ताकि आप और मैं सलामत रहे। उसकी सलीब इस बात का निशान है कि आपकी और मेरी सलामती हो। उसकी मौत इस बात का निशान है कि हमारी सलामती हो। और वो मुर्दों में से इसलिए जी उठा ताकि आप और मैं खौफ से, मौत के खौफ से, गुनाह के खौफ से, सजा के खौफ से आजाद हो जाए। आप और मैं यीशु पर ईमान लाकर अब्दी जिंदगी पाए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर आप और मैं यीशु पर ईमान लेकर उससे साथ वफादारी से चलें तो वक्त आएगा जब हम रूबरू यीशु को देखेंगे और फिर वो कहेगा, हमें भी कहेगा तुम्हारी सलामती हो। सो काश मैं इस दुआ के साथ कि आप और मैं यीशु मसीह के जी उठने को बेहतर तौर पर जाने भी, समझे भी और दुनिया तक पहुंचाएं और फख्र से कहें, यीशु वो है जिसकी कब्र खाली है। नामो नीचे का था, नामो नीचे रहा। आप और मैं मुकद्दसीन चर्च, ना हम नीचे के हैं ना हमने नीचे रहना है। आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और जब वो आएगा हम उसके साथ हमेशा आसमान पर रहेंगे। मैं दिल से इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं कि आप और मैं खुदावंद पर भरोसा रखते हैं जो जिंदा है, और उसके वसीला से आप और मैं हमेशा की जिंदगी पाएंगे। सारा जलाल हम खुदा के बेटे खुदावंद यीशु के नाम को देना चाहेंगे। मैं यकीन रखता हूं कि ये कलाम आपके लिए और मेरे लिए यकीनन बरकत का सबब है। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।